And to bowl the first over, it will be Prathamesh Thakre. Prathamesh Thakre has been in some sublime touch, whether it's bat, whether it's ball. He has been the go-to man as far as the HYS Warriors Hasapura concerned. Swapnil Marik, the skipper, in full control and trusting his overseas India icon to get him these 2 wickets. Officials in the middle, Abhitarekar and Siddesh Harmalkar. In the scoring, I've got a big fan of Punaji Kalangutkar, Dheeraj Palyakar. Yes, Prathamesh to Rajat. First delivery and trying to cut that one, missed out. Dot delivery. Plenty of support for both these teams. Yaya Teju is here as well. Nicely played down the ground, straight to the fielder. Hussey will just be a dot. Semi-final won by the A Creative Circle Pernem by 10 wickets. A convincing victory over the Saisha 11 Parsim. Nicely cut away this time in the gap, and you get full value for your shots once you clear the infield. He was certainly the man of the series in the recently concluded Mandarin Champions Trophy, and he's continuing his merry way. We had a spin over the ground. This time trying to play it up and over the infield. Finding just one. Straight to the field at short mid wicket. No proper timing. Shri Sanju Nagvekar is also here with us. Also along with him we've got Aniket Salgaonkar, Punch member, Village Panchayat, Dargar, ex-Sarpanch. Suchit Nanche. And that will be wide, extras. Score moves on to 6. Nicely flicked, and will pick up one and get at the mark with that single. Down the ground. Oh, gone through! And the fielder will again go back, mop it up. Just one. Single to end the over. After completion of one, it's 8. 8 without loss after the first over. Ganapati Warriors. Hosrim. Change in bowling. It will be Sandesh Thakur from the combox end. 8 without loss after the first over. Ganapati Warriors, Ozrim put into bat by HYS Warriors, Hasapur.
Lets that one go, and that will be a dot ball. Dot delivery to begin. Again, this time, yet another good delivery. Dot ball. 2 back-to-back dot deliveries. Very experienced is Sandesh Thakur. And the television umpire has been referred to just to check whether if it's a legal delivery or not. Fair delivery. So we can continue with the game. 2 dot deliveries back to back by Sandesh Thakur. Full toss up and over the infield. And that will one bounce into the fence for 4. Score moves to 12. Night is his night. And he can put the bowlers to sword just like that. That's gone all the way. Straight as an arrow onto the side screen. Score moves to 18 with that 6. Maximum. Score moves to 18 with that 6. This time, turn of the bat straight to the fielder. Will just be a dot ball. Just the second over in progress. A power play also still to follow. There he goes again. Can I take that one? No. Just in front of me. And another maximum to end the over. 2 overs done. It's 24 without loss. 24 without loss after 2 overs. Ganpati Warriors, Ozrim. To all parts. Here's Rajat Kudalkar. He hasn't kept quiet against Karan Ambala. Then why would he be quiet against any of the other bowlers? Vishwajit Thakur also getting his bit of spice with 6 boundaries in an over. He's in total box office, this man. Meanwhile, 2 overs done. 24 without loss after 2. Change in bowling. Yes, Bhau. From the opposite end, Raghunath Kaskar has a knack of picking up wickets. Can he do it tonight? Can he topple one of these two? Oh, certainly. God given. That's out. Wicket falls. Talking about wicket. And the HYS supporters are dancing in the aisles. Got the main man. Got Suchit Nanche.
Very cheaply. It's 24 for 1. One wicket down due to that unfortunate injury to Apali Kalangudkar. He couldn't be a part of this PPL season 10. He is here tonight with his father to witness this game. Hopefully he'll be back soon, as we all want him on the park as soon as possible. We're praying for it. It's one of the biggest tournaments in Goa coming in few days. Meanwhile, Bhau. Nicely bowled, straight to the man, hesitation. Chance of run out? No, not quite. Sahil not picking out cleanly and trying to throw it at the stumps. Maybe the batter's end would have been a better option. Single taken, gets off the mark. Sitar. Score moves to 25. 25 for the loss of 1. Third over in progress. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Talking about tenniscricket.in. All the scores on the television screen. The digital scoring has been handled by Ajit Atsrekar. Along with me, I've got Jay Bosle sir and Ashok Naik sir in the com box. Yours truly, Sham Galangudka, doing the commentary for the first 4 overs. 25, Rajat back on strike. Nicely bowled again, right in the block hole. The crowd is behind him. It's cheering every delivery. Oh, would have been going on to the stumps, but not to be. Very lucky. Another dot ball. Maybe trying to find that gap between short third and the deep point. Snehal Malik on that deep point boundary. Man at long on, long off. Deep mid wicket and deep square leg on the fence. Nicely bowled. Good delivery. Will pick up just 1. Wants to come back for the second? No, just settling for 1. Single taken so far has been an excellent over. There's 2 runs off it and a wicket. Score moves to 26. 26 for the loss of 1. Again, good delivery. Dot delivery, excellent over coming to an end. Just the 2 coming from it and a wicket. After completion of 3, it's 26 for 1. 26 for 1 after completion of 3 overs. Ganpati Warriors, Ozrim. Sandesh Thakur to continue. Bowling his second and team's 4th. 26 for the loss of 1. Rajat on strike. Can this man from Karnka get some runs against the man from Honda?
Nicely played down the ground. Will pick up just one. Score moves on to 27. 27 for the loss of one. Ganpati Warriors put into bat by the HYS Warriors Hasapur after winning the toss. Left-handed batsman on strike. Let's check the field for the left-hander. Man at deep mid-wicket. A wide-ish bit of cow corner. That's up in the air. On the bounce and will go into the fence for 4. Welcome runs. Score moves to 31 with that boundary. Again, not finding the meat of the blade. Will find just one. Score moves to 32. Best wishes have been sent to Sandy by Rahul Matkar and family of the Arab 11. Team owner Arab 11, Ravindra Matkar and Rahul Matkar, sending their best wishes to Sandesh Thakur. Meanwhile, back live 32 for 1. Rajat on strike. Drifting down, maybe sliding. Leg by is a signal given. Single will mark 33 on the scorecard. 33 for 1. Last two deliveries at the halfway stage. Left-handed Sitar on strike. Good delivery, excellent delivery. Looking for a single, but no, denied. And rightly so, don't want to take any risk at this stage. Because these two are starting the groove, getting the momentum back for the Ganpati Warriors. Need to continue. Maybe try and accelerate in the remaining 4. Last delivery of the 4th. This time he goes down the ground and taken. Munna taking the catch. Salil like. Hekas Raja taking the catch and 2 wickets down. It's 33 for 2 at the halfway stage. 4 overs done. It's 33 for 2. Ganpati Warriors Ozrim will be changing voice. It will be Jai Bhosle sir with you in the com box for the next 4.
छोटी गेंद इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, फिर एक बार मौका जरूर वहां पर, और अनिल वडार थे मेरे ख्याल से फील्डर वहां पर, और एक विकेट यहां पर निकलता हुआ, सितार का विकेट, जो धनंजय का विकेट निकलता हुआ। और अनिल वडार की बात यही है कि इस पूरी श्रृंखला में क्या शानदार फील्डिंग उन्होंने की है, ग्राउंड फील्डिंग हो, कैचेस हो, बहुत शानदार अनिल वडार, और एक विकेट बैक टू द पेविलियन। अंदर सचिन रजत का साथ देने के लिए, दो दो मौके बने थे, एक मौका हाथ से छूटा, दूसरा मौका यहाँ पर बना, लेकिन धनंजय का वो मौका था। रजत कुड़ाकर अभी भी नो स्ट्राइक एंड के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी हो रही है प्रथमेश ठाकरे की मैदान पर। ये महत्वपूर्ण ध्रुव ओवर, आगे निकले थे, खेलने के लिए जड़ में डाली वाइड यॉर्कर, बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी यहाँ पर। देखिए किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं प्रथमेश ठाकरे, सामने वाले बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे, इतनी तेजी के साथ गेंद निकल रही है, हरकत करती हुई नजर आ रही है, विकेट कीपर के हाथों में एक सटीक यॉर्कर का प्रयास कामयाब होता हुआ। और इस बार आगे निकले थे, खेलने के लिए शॉट पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करते, सिंगल के साथ चोर बदलते हुए स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं रजत कुडालकर। अब तक ये नपातुला ओवर रहा है जो कि प्रथमेश ठाकरे का। टोटल की बात की जाए, टोटल पहुंचा है 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस, ये थोड़ी सी खराब गेंद, मिड विकेट के ऊपर से फुल टॉस, यानी कि फुल लॉस, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, सिक्सर। और टोटल 41 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर ये शुरुआत यहां पर आपको दिखाई देती हुई गणपति वॉरियर्स वज्रिम टीम की। गेंदबाजी में रघुनाथ उर्फ भाऊ हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से पिछले मैच में क्या बेहतरीन गेंदबाजी करी थी भाऊ ने, एक सेट बल्लेबाज को आउट किया था और वहीं से मुकाबला अपनी तरफ खींचा था या वहां से टीम दे। अब फिर एक बार उनके सामने बल्लेबाज, ओ इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहा, थोड़े अपने लिए यहाँ पर जो कि कोना बनाया था रघुनाथ ने, अपने लिए जगह बनाई थी, और जो कि लाइन के साथ जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज के थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ओ फिर एक बार वैसी गेंद, मानो रिप्ले डाल रहे हैं वैसी गेंदबाजी, पुनर्लिंग की गेंद सामने डालते हैं, बल्लेबाज को अनुमान लगाना पड़ता है गेंद ऊपर उठी या नीचे नीचे से चली जाएगी, और तब तक गेंद निकल जाती है विकेट कीपर के हाथों में। पूरे अनुभव के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, पूर्ण अभ्यास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इस एंड से। और इस बार उठाकर खिलाए, खड़ी हो गई है गेंद, हवा के साथ साथ गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। के साथ अब टोटल पहुंचा है 47 रन स्कोरबोर्ड पर।
और फिर एक बार उठा करके लाए, फिर एक बार गेंद निकलेगी, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए गणपति वॉरियर्स वज्रिम टीम के 50 रन पूरे, टोटल पहुंचा 53 रन पर 53। लगातार 2 बड़े हिट के साथ अब टोटल मात्र ठीक ठाक कर दिया है, 53 पर पहुंचा है टोटल। इस ओवर की 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। पहली 2 गेंदें डॉट, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट, 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस मैदान का रात के वक्त का अनुमानित टोटल है 80 के आसपास का। अगर 80 के आसपास का टोटल यहां पर कोई भी टीम पहली बल्लेबाजी करते वक्त बना लेती है तो चेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि शबनम जब गिरती है ना तो थोड़ी सी नमी महसूस होती है मैदान पर। लेकिन देखना पड़ेगा यहां पर जब तक रजत कुडालकर मैदान पर है, शायद 90 तक पहुंचने की कोशिश होगी गणपति वॉरियर्स वज्रिम टीम की। शब्दम यानी ओस है, ड्यू है, अलग अलग शब्द होते हैं। आप सोच रहे हैं वो नहीं है। और इस बार खोद कर निकला, फिर एक बार मिड विकेट की दिशा में तेजी के साथ खिलाड़ी आ रहे हैं। पहला रन पूरा क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, बहुत बढ़िया थ्रो यहां पर करते हुए 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 54, 54 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं पेन प्रीमियर लीग 2025, जिस प्रीमियर लीग की शुरुआत गोवा राज्य में पहली बार हुई थी और दशक पूर्ति प्रतियोगिता इस मैदान पर, आज का आखिरी रजनी इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस यानी कि वो देखने वाली बात होगी, क्या यहां पर कैच को लपका गया है? ये 6 रन के लिए निकली है गेंद, यानी कि आखिरी गेंद पर थोड़ा सा उत्साह भरा वातावरण देखने को मिला, लेकिन पल भर में वो निराशा छाई चेहरे पर। आखिरी गेंद पर ये लगा एक बड़ा शॉट और टोटल अब पहुंचा है 60 रन। उसमें 4 छक्कों का समावेश, उसमें 2 चौके लगाए और 37 रनों के एक शानदार पारी को अंजाम दिया, जिसके चलते हुए एक टोटल सम्मानजनक मैं कहूंगा 61 रन पर। और नए बल्लेबाज अब मैदान पर प्रशील शेट्टी सामना करेंगे स्नेहल की गेंदबाजी का। और इस बार उठा कर खेला है, बहुत बढ़िया, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, ना हिलने की जरूरत ना डुलने की जरूरत, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर। डगआउट से सेट होकर निकले और चक्के के साथ टोटल अब पहुंचा 67, 67 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। ओ थोड़ा सा अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, गेंद काफी बाहर की तरफ निकली, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का दोबारा डालनी पड़ेगी। गेंद 1 रन का इजाफा हो गया है, 1 रन के साथ टोटल 68 पर पहुंचा है। जो बड़ा शॉट चाहिए था वो निकला है, लेकिन बड़ा विकेट चाहिए था वो भी निकला इस ओवर में।
छोटी गेंद, इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, काफी दूर है, उनके सामने गिरी गेंद, तब तक सिंगल चुराने का पूरा मौका। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा हुआ 69 रन पर 69। अभी भी इस ओवर की मेरे ख्याल से 2 गेंदों का खेल बाकी, यानी कि इनिंग की कुल 8 गेंदों का खेल बाकी है। कितने रन का टारगेट रखेंगे सामने वाली टीम के पास, ये देखने वाली बात, ये 8 गेंदें तय करेगी। ओ ये स्लोवर वन, फिर की गेंदबाजी, फ्लाइटेड डिलीवरी, ललचाया था थोड़े से आगे आने के लिए, लेकिन खड़े खड़े खेलने की कोशिश करी। जब टिप्पा गिरता है ना इनकी गेंदबाजी का, तो बाहर की तरफ निकलती है गेंद, थोड़ा सा हरकत करते हुए नजर आई। बाकी का काम पूरा कर दिया विकेट कीपर स्वप्निल उर्फ बाबा मलिक ने। बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट मिड ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तेजी के साथ आ गए, वहां पर 1 ही रन मिलेगा, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर समाप्त हो गया, 7 ओवरों का खेल समाप्त, 10 का रन रेट बरकरार, 70 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदों का खेल अब बाकी है। को चीरते हुए 6 रन के लिए सिक्सर। भी बाकी है, शायद ये टोटल 85 रन तक पहुंचा पाए तो मैं कहूंगा अच्छी भिड़ंत देखने को मिलेगी मैदान पर इस दूसरे सेमीफाइनल में। ओ इस बार फंसे, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर प्रथमेश ठाकरे का, एक तेरी एक मेरी, आखिरकार साहिल के चेहरे के ऊपर आ गई है हंसी, और एक विकेट, बैक टू द पेविलियन। पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद में विकेट निकला, फिर एक बार हंसी, और नए बल्लेबाज मैदान पर ऋतुराज। और ऋतुराज आ गए, हवा में खेला, गेंद निकलेगी, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए ऋतुराज आ गए, ऋतुराज मैदान पर छा गए, मिला ये शानदार चौका, 4 रन।
इस मैदान पर अनुमानित स्कोर बताते हुए लगभग वहां तक तो पहुंचे, 80 रन तो पहुंचे। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी और आने वाली ये 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण दोनों टीमों के लिए। अब तक 10 रन 3 गेंदों में 1 विकेट। ये पृथक्करण इस ओवर का आखिरी ओवर किस तरह से घटा है ये आपके सामने। ओ फिर इस बार चकमा दे दिया, बिंदी गेंद यहाँ पर समाप्त हो गई। सैक्रिफाइस करना पड़ना अपना विकेट, क्योंकि स्ट्राइक पर लाना चाह रहे थे प्रशिल को और 1 विकेट निकला। स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रशिल। बचे इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदों का खेल। टोटल 80 रन, 5 विकेट के नुकसान, 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर पल्लव शेटे। की ओ बहुत बढ़िया गेंद और स्टंप आउट कर दिया है। यहाँ पर प्रशिल को भी चलता कर दिया है। क्या शानदार गेंदबाजी करी है। देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर जो गलती करी थी 2 गेंदों में वो नहीं करी और वापसी कराते हुए स्कोर 80 पर अभी भी रुका हुआ और आखिरी गेंद का खेल अभी भी बाकी। गेंद का सामना करने के लिए चंद्रकांत मैदान पर। सपना और सपने को आकार देने के लिए अनेक प्रकार के आपको बल्लेबाजी गेंदबाजी मैदान पर फील्डिंग करनी पड़ती है। आकार देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। और जब आप इसी तरह से प्रामाणिक तरीके से अपना काम करते रहेंगे, आपके मेहनत रंग लाएगी, अपना सपना साकार हो जाएगा, आकार मिलेगा अपनी जीत को, आकार मिलेगी अपनी ट्रॉफी को। देखना है क्या होगा इस मैदान पर। भिड़ंत तो जारी है। एक तरफ है गणपति वॉरियर्स वज्रिम टीम, दूसरे तरफ है HYS वॉरियर्स हसापुर। आखिरी गेंद का खेल बाकी। और इस बार खेला लेकिन नहीं, विकेट निकलेगा और एक इस ओवर में निकले हैं सिर्फ 10 रन। 2 बड़े शॉट के बावजूद रन निकले सिर्फ 10। अब यहां पर दूसरी इनिंग में चाहिए रन कितने, तो 81 रन। 80 पर रोका गया है। रात का समय है और सेमीफाइनल का मुकाबला। किस तरह से गेंदबाजी यहां पर होती है। क्या प्रथमेश ठाकरे ने जिस तरह से दोपहर के सत्र में बल्लेबाजी करी थी वैसी बल्लेबाजी इस मैदान पर हो पाती है, या दूसरी तरफ गेंदबाजी से सामने वाली बल्लेबाजी को धारातीर्थ कर देती है वज्रिम की टीम। ये देखने लायक बात होगी। तो दूसरी इनिंग का आगाज जब तक हो, आप देख रहे हैं पेड नेम प्रीमियर लीग 2025 दशक पूर्ति। आज की है आखिरी रजनी। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, आवाज सुनते हैं रेडियो कमेंटेटर अशोक नाइक सर और उनके साथ श्याम कलगुटकर।
जय भोसले 80 रन बना चुके हैं, 81 का टारगेट है, 37 रन रजत कुडालकर की शानदार बल्लेबाजी और सचिन मावलरकर ने बनाए 22 रन। इसी के बदौलत शानदार गेंदबाजी भी रही, संदेश ठाकुर हो, रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ हो और प्रथमेश ठाकरे हो, शानदार गेंदबाजी रही, फील्डिंग अच्छी रही और एक अच्छा टोटल है। मैं नहीं कहूंगा ज्यादा है कम है, एक मुकाबला हो सकता है। पहला सेमीफाइनल दर्शकों को काफी निराश कर गया, लेकिन उम्मीद है ये मुकाबला आखिरी ओवर पर चला जाएगा। देखना होगा। फिलहाल ओपनिंग जोड़ी में आ चुके हैं सलील नाइक, एकत राजा उर्फ मुन्ना और उन्हीं के साथ प्रथमेश ठाकरे और सामने पहला ओवर लेकर सुचित सुचित नानसे। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद हवा में कवर पॉइंट पर और पहली गेंद पर कवर पॉइंट पर एक शानदार कैच पकड़ा और पहला धक्का लगता हुआ HYS हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। आज बिल्कुल एक अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन पहले मैच में अर्धशतक, लेकिन एक अच्छा कैच कवर पॉइंट पर फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली गेंद थी और पहली गेंद पर ये कैच निकला था कवर पॉइंट पर। कैच को पकड़ा और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर साहिल मलिक। 81 रन टोटल, सेमीफाइनल का मुकाबला। एक ओर से एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम जो अंतिम फेरे में प्रवेश कर चुके हैं। दर्शक काफी बड़ी संख्या में मैदान पर, सभी का स्वागत है और दोनों टीमों के सपोर्टर भी काफी है मैदान पर उपस्थित। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कॉम बॉक्स में से। अगली गेंद से बीच में फुल टॉस गेंद आगे निकलकर खेला, इस बार ऑफ साइड पर और जब तक बैकवर्ड कवर पॉइंट पर गेंद को आते उठाते दूसरे के लिए थोड़ा सा पलटे जरूर थे, लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है, ऐसे समय पर रनआउट का विकेट आपको बहुत महंगा बन सकता है। मैदान पर रनों का खाता शुरू किया HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने। 1 रन 1 विकेट पर। टूर्नामेंट में सबसे अगर व्यक्तिगत ज्यादा टोटल जिस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं वो है मैदान पर अब प्रथमेश ठाकरे। अल्टी पल्टी वाला शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर दूर है, आउटफील्ड तेज है और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। सकते रिप्ले देखने को मिल रहा है एलईडी स्क्रीन पर, शानदार लाइव प्रसारण है रिप्ले में और चौका लगा स्कोर के खाते में। शॉट ऑफ लेंगे, इस बार पीछा किया था, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचा टोटल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 81 का टोटल लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए, अंतिम फेरे में प्रवेश करने के लिए। कौन जो कि मिलेगा, कौन भिड़ेगा एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के साथ। बस थोड़ा समय बाकी है अभी भी इस मैच के साथ। अच्छी गेंद, इस बार डील आया तो सिकेला पॉइंट पर, फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, डायरेक्ट हिट। देखना होगा, अंपायर का इशारा हो चुका है जो तीसरे अंपायर की ओर, लेकिन देखा जाएगा। फिलहाल तीसरे अंपायर जो टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ चुके tenniscricket.in लाइव के साथ, और बहुत जल्द आपके सामने फैसला होगा।
पीपीएल का 10वां पर्व पावर्ड बाय गोमलचल डेयरी, सेमीफाइनल का मुकाबला और महत्वपूर्ण मैच है, तो थोड़ा सा समय जरूर लेंगे। काफी दर्शक इस मैदान पर, सुरेश रैना मुर्मू से तय मैदान पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। वीआईपी कक्ष में एक सम्मानीय अतिथि इस मैच का आनंद लेते हुए, और उन्हीं में से बैठे हुए हमारे दोस्त सर राजेंद्र दाभोलकर और मैडम उनके साथ सोनिया दाभोलकर, वो भी मैच का आनंद लेते हुए आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में से। दोस्तों थोड़ा समय जरूर ले जा रहा है क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसलिए बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल आपके सामने होगा और वही देखा जा रहा है। OUT आउट। तो अंपायर का फैसला हो चुका है। एक बहुत ही शानदार फील्डिंग, पावर प्ले का पहला ओवर और पावर प्ले के पहले ओवर में 2 सफलता हासिल करते हुए गणपति वॉरियर्स वजीरिम क्रिकेट टीम डीजे। कोशिश तो कर सकते हैं यहां से लेकर, क्योंकि अभी भी काफी गेंदों का खेल जो कि बाकी है। पावर प्ले का 1 ओवर, बाद में एक ध्रुव ओवर, सब कुछ बाकी है अभी भी, और नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, इस बार हल्के से खेला गेंद को गली पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं। मनोज तांडल आ चुके नए बल्लेबाज मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर, एक अच्छी शुरुआत सुचित नानचे की गेंदबाजी के साथ, एक रनआउट के साथ 1 विकेट और टोटल 2 विकेट खोए, और स्कोर रुका हुआ टोटल जो कि 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 81 का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए। थोड़ी सी शुरुआत तो बिल्कुल नाजुक हो चुकी है, लेकिन अभी भी लंबा सफर है, लंबा समय है मैदान पर। 7 ओवर का खेल बाकी है, बैटिंग ऑर्डर बाकी है, पावर प्ले का ओवर बाकी है, ध्रुव ओवर बाकी है। सामने बिल्कुल बेहतरीन शुरुआत की है, शानदार बल्लेबाजी रही, जो कि शुरू में 37 रन बनाए रजत कुडालकर ने, और उनका अच्छा साथ दिया सचिन बावड़कर ने, 12 गेंदों में 22 रन बनाए। पावर प्ले का ओवर, दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए सागर मोरजकर, जो एक तेज गेंदबाजी करते हैं। इस विकेट की, इस मैदान की बिल्कुल पूरे उनको जानकारी है, विकेट की जानकारी है, आउटफील्ड की जानकारी, ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं इस मैदान पर, और वो अपने बॉलिंग मार्ग पर। दूसरे ओवर की शुरुआत, पहला ओवर समाप्त 5 रन 2 विकेट पर। इस बार ऑफ साइड पर सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद को ऑन साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, 2 फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। यह फील्डिंग, एक ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, ऑफ साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑफ पर 2 फील्डर है बाहर। सागर की अगली गेंद, बढ़िया शॉट, इस बार स्टोक के लिए जगह बनाई, मिड विकेट पर हवाई फायर, और गेंद चली गई सी मारिका से बाहर, 6। भी थी, लेकिन बल्लेबाज को दाद देनी पड़ेगी, मिड स्टंप पर गेंद थी, और बिल्कुल अच्छा टाइमिंग।
अल्टी पल्टी वाला शॉट, स्विच हिट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, दो फील्डर गेंद के पीछे और देखना होगा गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। बैक टू बैक दूसरा बड़ा आगाज मैदान पर 6 रन के लिए। प्रथमेश ठाकरे सामना कर रहे आने वाली गेंद का। 17 रन टोटल स्कोर। किस टीम को खतरा होगा आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सागर मोरस्कर अपने बॉलिंग बार पर एक छोटा रनअप 4-5 कदमों का। तो फिर से सफल होकर खेलना चाहते थे, देखना होगा विकेट कीपर के पीछे गेंद चली गई, खुद निकल पड़े और इसी के साथ ये बड़ी मछली जाल में तीसरा विकेट चला गया HYS हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम का। डीजे जल्दबाजी की, मेरे ख्याल से 2 शॉट लग चुके थे, थोड़ा और रुककर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन और एक बड़े शॉट के लिए निकले। 81 रनों के जवाब में अब थोड़ी सी संकट में मैदान पर HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम। सागर मोरस्कर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक अच्छा विकेट चटकाते हुए, अच्छा शॉट, ओह सामने बिल्कुल कवर पॉइंट पर सीधे फील्डर के हाथों में। जिस तरह से शुरू में पहला विकेट खोया था, जो कि सलील नाइक का शॉट को, जो कि कैच को पकड़ा था, बिल्कुल वही देखने को मिला और वही फील्डर मैदान पर चंद्रकांत कांबळे कैच को लपकते हुए काफी निराश मन के साथ वापस लौटते हुए डगआउट में। स्वप्निल क्योंकि ज्यादा मौका नहीं मिल चुका इन बल्लेबाजों को। जो कुछ बल्लेबाजी हो रही थी शुरू में, जो कि आधा काम करते थे सलील नाइक और प्रथमेश ठाकरे, लेकिन अब समय आ चुका है बल्लेबाजी का और मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर है। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए अनिल वडर। इस टूर्नामेंट के अगर मैं बात करूंगा, सबसे बेहतरीन फील्डिंग में 2-3 खिलाड़ी जो जरूर है और उनमें से इसका भी नाम है। बहुत शानदार फील्डिंग की है, लेकिन अब जिम्मेदारी है बल्लेबाजी की। सागर अपने बॉलिंग बार पर ऑन हैट्रिक की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया ऑफसाइड पर, सिल ऑफ पर। ओहो हा ना, और इसी बीच ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। ये बिल्कुल ऐसे समय पर विकेट चला गया जब प्रेशर में मैच था, टीम पर दबाव था और वहीं पर एक कीमती विकेट और खोती हुई HYS आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम लगभग संकट में मैदान पर। डीजे
सागर मोरजकर का शानदार ओवर, एक ओवर 2 विकेट चटकाए, तीसरा रनआउट के साथ 12 रन दिए। पावर प्ले समाप्त हुआ शुरू का 2 ओवर का, और पावर प्ले के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 5 विकेट पर। आधी टीम वापस गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन। तीसरे ओवर की शुरुआत रजत कुडालकर, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गुडलेस स्पॉट पर उछाल लेती हुई बल्लेबाज शायद छोड़ू या खेलू इस द्विधा मनस्थिति में, और फिलहाल इसी बीच गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल शुरू हो चुका है तीसरे ओवर का। 81 का लक्ष्य मैच को जीतने के लिए। अब थोड़ा सा मामला दूर का, लेकिन देखना होगा, क्रिकेट है। शानदार शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर, और गेंद को फील्ड किया। थोड़ा सा आगे निकले थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो रही है, अपने बढ़ते कदमों को रोका। सामने बल्लेबाजी कर रहे मनोज तांडेल और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। इस बार आखिर में गेंद को पुल किया, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 18 पर पहुंचा। बड़ी देर के बाद एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सामने एक बार फिर से बॉलिंग बार पर रजत कुडालकर। ओ, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से कट होकर बाहर की तरफ निकली। सीमित विकेट है, उछाल भी मिल रहा है, गेंदबाज को मदद मिल रही है विकेट की। और फिर से एक बार एक डॉट गेंद के साथ रजत अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर 5 विकेट पर 18 रन। एक नाजुक संकट में मैदान पर शायद बिल्कुल कुछ आता पता नहीं लग रहा है बल्लेबाज रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ को। समझ नहीं पा रहे कि गेंद खेलूं या छोड़ू, और तब तक गेंद निकल रही है विकेट कीपर के हाथों में। लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, एक थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर है। गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम 80 रन 81 का टोटल है सामने जीतने के लिए। शायद क्या बिल्कुल कुछ हमें भी नहीं पता हो रहा है कि क्या हो रहा है मैदान पर, किस तरह से खेल रहे हैं रघुनाथ कास्कर उर्फ बाऊ। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की है, लेकिन बल्लेबाजी में बिल्कुल जो कि लगातार डॉट गेंदे। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, सिर्फ 1 रन बना इस ओवर में, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का पहला मैच थोड़ा सा एक तरफी रहा था। एक बड़ी जीत हासिल की थी एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने। क्या बिल्कुल यही मैच दर्शकों को निराश करेगा? आने वाला समय बताएगा। 30 गेंदों का खेल बाकी है अभी भी, और 30 गेंदों में मैच को जीतने के लिए अभी भी बनाने हैं 63 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन एक बार फिर से। सागर मोरजकर शानदार स्पेल, पहले ओवर में खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए, और देखना होगा किस तरह से ये ओवर उनका होता है। फिर से थोड़ा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर। बल्लेबाजी में रजत कुडालकर ने बनाए 37 रन, सचिन मावड़नकर 22 रन। ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट शॉट, काउ कॉर्नर पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 19 पर पहुंचा टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर खुद का दूसरा सागर मोरजकर का। कल ज्यादा थोड़ा ठंडी का मौसम जरूर था, आज थोड़ी सी कमी ठंडी की महसूस हो रही है, लेकिन कल ज्यादा ठंडी थी। सागर शायद दर्शक भी काफी जो कि बिल्कुल शोर मचा रहे हैं कि इस रघुनाथ कास्कर की बल्लेबाजी पर 4 लगातार डॉट गेंदे खेल चुके अब तक, और सागर अपने बॉलिंग मार पर दाइनाथ से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ओ, फुलर लेन की गेंद, इस बार अपील हुआ, विकेट कीपर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, सागर आते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर। इस बार कोशिश की थी रघुनाथ कास्कर ने एक बड़ा शॉट लगाने की, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ।
फुल टॉस गेंद इस बार आगे निकलकर खेला गेंद को लॉन्ग अप बाउंड्री पर। टीम के साथ नहीं है जरूर, जो कि थोड़े से चोटिले हैं पैरों के साथ, जो कि कहीं ना कहीं आपाली कलंगुट कर, लेकिन अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना टीम के साथ जुड़ चुके हैं, मैच को देख रहे हैं। और उन्हीं के साथ उनके पिताजी हमेशा जो कि आते हैं क्रिकेट के इस मैदान पर, और वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। आपका स्वागत है कॉम बॉक्स में से। सामने ओहो, थोड़ी से हाथों को टकराई जरूर, लेकिन ऐसे कैच बिल्कुल पकड़े नहीं, चिपके जाते हाथों में। सागर अपने बॉलिंग मार्क पर लॉन्ग अप पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 21 रन पर, 5 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी बन रही है, लेकिन जो रन गति चाहिए वो नहीं हो रही है मैदान पर। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट बढ़ता जा रहा है स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस गेंद, ये बड़ा शॉट डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। टोटल स्कोर खेल और एक ओवर का 4 ओवर समाप्त हुए, 27 लॉस ऑफ 5 विकेट। आने वाले 24 गेंदे और मैच को जीतने के लिए 54 रन, 24 चेंडू 54 दावा। गेंदबाजी में बदलाव और कॉम बॉक्स में आइए जुड़ जाते माइक्रोफोन पर शाम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok Naik, sir. And this will be the Drew over. All the fielders inside the 30-yard ring. 24 deliveries and requiring 54 runs to win. As far as the chances of HYS Warriors Hasapura concerned to win this game and move into the finals. So far, the stronghold on this game, 4 overs, 27 for 5. Currently with the Ganpati Warriors Hosrim. Yes, Suchit Nanche to empty. Good delivery. That's gone through. It's running towards the fence. Prashil after the ball. Oh, what has he done? 2 more runs added. A couple of runs by signal given by the umpire. Runs added. Score moves to 29. 52 in 23. Game all about nerves. Who has the nerves of steel? Only that one will prevail. And who will it be to prevail into this semi-final to final? Nicely played up and over. And that will be runs. That will be 4. Save your legs. Score moves to 33 with that boundary. Certainly getting in the groove, these two now. Manoj Tandil along with Bhau. Sandesh Thakur in the wings. He too can tongue the ball a fair distance. 33. 2 deliveries have gone for 6. This time in the gap and will pick up just 1. Brings Bhau on strike. Raghunath Kaskar.
34 on the scorecard. 7 of the first 3 deliveries. 47 required now. 47 in 21. Lets it go, and that will be a dot. It has been referred to the television umpire. We'd like to welcome Shri Ranganath Kalchaukar, Harmal's ZP member, in the VIP box. So please take your seat in the VIP box. Fair delivery. We can continue. Four deliveries in. So far 7 runs of the first 4 deliveries. What are the next 2 coming? Trying to shuffle and trying to play it on the offside. Missed out. Dot delivery. Has hit a maximum, but has been too many dot deliveries for him. Needs to understand that he needs to change the strike. Can't afford to be at one end where the bowlers are trying to get some deliveries in quickly. Nicely bowled. And straight to the fielder. Chance. No, not quite. Single has been taken. So 8 runs coming from that over after completion of 5. It's 35. 35 for the loss of 5 wickets after 5 overs. Requiring another 46 in the last 3. 3 overs remaining and requiring 46 runs to win. Fabulous crystal trophy that from the Abhi's Mahalakshmi Sports. Was there at the auction. What a trophy it is. Heavy, but one to catch the eye from the Abhi's Mahalakshmi Sports. Change in bowling. Here's Chandrakant Kamre. Has been superb tonight in the field. Up against Raghunath Kaskar. 46 in 18. No proper timing. Will pick up just 1. And looks like that will just be 1. Score moves to 36. 45 in 17. Gettable, you never know. Manoj Tandel still in there. Still Sandesh Thakur, who will be lining up. Nicely bowled. And will get... gone through! And that will be a boundary. Sitar Shetty down there. And that's gone through him. Lucky boundary. As far as the HYS Warriors Asapura are concerned. Score moves to 40. Another 41 required now. 41 in 16 deliveries. Well, I told you earlier, game of absolute nerves. Who has the nerves of steel will only prevail. The one who can keep high hopes and can trust his instincts. This time, toe into the bat. And will pick up just 1. Just the single taken. Score moves to 41. It looks like Raghunath Kaskar
He is retiring out. It will be Snehal Manik going in. Two brothers already gone. Third brother. Can he be that clutch tonight? Can he provide that finish for the HYS Warriors Asapur? Given too many runs while bowling. Needs to get in the groove while batting now. Just can't afford. Yes, retired out. Raghunath Kaskar is retired out. In comes Snehal Manik. .40 required in 15 deliveries. Game of 6 to 7 maximums. Easier said than done. Someone should hit them. Is Snehal the man? Is Tandel the man at the other end? Can they hit those 6 maximums which are required in the remaining 15 deliveries? Is that the first one? Indeed it is. Gone into the VIP box with that maximum. Score moves to 47. Well, he's certainly charged. Here's Snehal Manik. Score moves to 47 with that 6. Now requiring another 34. 34 required in 14. Already we have seen a creative circle pair them reach the finals. Which team will it be? Will it be Ozrim or will it be Hasapur? Chandrakant again. This time good delivery, much fuller. Dot ball. In case you are just tuning in, this is Pernem Premier League 2025 Season 10. 10 years of glory, powered by Gomanchal Dairy. Hasapur against Ozrim. Again, excellent delivery. Spot on. Both those Yorkers nailed it to perfection. 47 for the loss of 6 wickets after 6. 2 overs remaining and requiring 34. 34 required in the last 2 overs for the HYS Warriors Hasapur. This penultimate over. It's Rajat Kudalkar, the Goan icon for Ganpati Warriors. Ozrim. Here he is up against Mr. Tandil. Backed away in the air and gone. Slower delivery. And completely flummoxing on that slower delivery. Manoj Tandil departs. What a game. The wicket falls. 34 required in 11. Man in Sandesh Thakur. Well, he's been in these kind of situations. Needs that momentum. Can he provide that momentum right now for HYS Warriors Hasapur? Rajat Kudalkar on top of his bowling mark. 11 deliveries, 34 to win. Already 7 wickets down
of the HYS Warriors. That's big. And that's gone into the hands. Thought it looked like it would clear the man, but no. Into the hands of the fielder Suchit Nanche, completing the catch. And another wicket for Rajat Kudalkar. Well, what a game he's having. 37 of 21 and now picking up 2 wickets. Previous over just 1 run and now not given any runs but picked up 2. Hat-trick delivery. And in comes Pritesh. Hat-trick delivery. Rajat Kudalkar on a hat-trick. 34 required in the next 10. 10 deliveries, 34. Snehal Manik at the non-striking end. Clear message from Snehal would be try and get a single. Get me on strike. Oh, dot delivery, dot delivery. Pressure. A creative circle pair them into the finals. These two battling it out. You just can't tell which team is winning. Oh, shuffled across, trying to just work it on the onside. Missed out. Directed would have been close. Leg buys, the signal given by the umpire will just be 1. Score moves to 48. 8 deliveries, 33. What does Nehal do now? Does he try and get a maximum now and try and shell the strike in the next over so that 26 runs will be required? Reverse sweep, missed out. Dot delivery. Well, too many deliveries that have been dot balls. Just at the start where Raghunath Kaskar was sent in, would have been Snehal coming in or Sandesh Thakur, so that right and left hand combination would have been helpful. Nicely guided, will pick up 1. Just 1. And a fabulous over coming to an end. Just the 2 coming from it and 2 wickets. What a spell of bowling this is. 2 overs, no maidens, 3 runs and 2 wickets for Rajat Kudalkar. Has completely taken his team towards that victory margin. Sagar Moraskar as well with those 2 wickets earlier on. And now 32 required in the last over. 32 required in 6 for HYS Warriors Hasapur. In 6 deliveries. Short delivery, pulled away in the air. Fielder will watch it sail over. That's a maximum, first maximum. 26 required now in 5. This is not over yet. 5 deliveries, 26 runs. Rajat might have just told him, why are you bowling short? Try and bowl outside the off stump so that the batsman try and swing it on the onside. 26 required of the last 5 deliveries. Entertaining with this game, so much
This game has evolved over the years. That's up in the air. That could be. Indeed it is. Wicket. Ruturaj picks up a wicket. And looks like the last nail in the coffin of the HYS Warriors, Hasapur. The hopes also diminishing with that dismissal. Well, it was too much to get in the last over. Well, just at the turning point when those dot deliveries, Rajat Kudalkar with that just one run, and also Sagar Moraskar. And after all, Rajat came in to bowl the penultimate over where he just gave 2 runs and picked up 2 wickets. Well, it completely changed the dimensions of the game. 16 dot deliveries in this innings. And still we are not counting the wickets. 16 dot deliveries by the batsman. And add 9 wickets to that. So 25 dot deliveries. Almost 4 overs have been dot. More than 4 overs been dot. Last man in. Sliced it in the air. And that's been taken. And with that victory for Ganpati Warriors Ozrim, they were the first team to qualify for the semi-finals. And now they are the team that reaches the finals as well. What a game this is. What a turnaround. They don't have Apali Kalangutkar. They don't have Pritam Bari. But still, with Rajat Kudalkar and the others, they have reached the finals. So take a bow, that team. So much to learn. When your chips are down, you still, if you hope, you dream, you can reach the heights. What a game. 49. In fact, 55 all out are the HYS Warriors Asapur. We'll have the presentation ceremony as well later on, as we'll move towards the finale in a short while, as a Creative Circle Pernim will take on Ganpati Warriors Ozrim.